Hello everyone, I am your Astro Pharmacist Maryum today. I'm back with another video on the vaccines. So today I will be teaching you the biological assay or the quality control of the vaccines. First of all, I will tell you something about the vaccine and what are the types of the vaccine, and then I will tell you about the uh, tests which are performed on the vaccines and how the vaccines are formed and what kind of the quality control and the other kind of the test for determination of the vaccines is done on the vaccine. So without any delay, let's start our topic on vaccines today. Uh, but before starting this lecture, I would request you to kindly subscribe my channel, Ask Your Pharmacist Maryum, and turn on the bell of notification. And if you like this video, then hit the like button below and share this video with your fellows and friends. And if you have any question and query, you can ask the question in the comment box. So without any delay, let's start the vaccines. Uh, so first of all, I will tell you about the definition of the vaccine. What are vaccines? Actually, vaccines are the preparation or the biopharmaceutical preparation that induce immune response. What are the main purposes? That they induce immune response. Vaccines for human use may contain whole microorganism or that of treated attenuated their virulence mean they have lost their virulency or the property of causing any disease and infection with retaining adequate immunogenic properties. Antigenic extracted from the microorganism or secreted by microorganism or produce genetic engineering or chemical synthesis. So they can be any antigen extracted from the microorganism, or they can be any toxin produced by them, or any genetic engineer or chemical synthesized component of any microbe. So vaccine may contain any adjuvant where the antigen is absorbed. So it may contain any adjuvant like aluminum oxide gel, mostly used in the vaccines, and that act as an adjuvant in the vaccine. और उसके साथ जो antigen होता है ना वो attached होता है और the mineral adjuvant हमें उसको कहते हैं the vaccine is referred to as absorbed. So क्या होता है कि वो जो antigen होता है या वो जो mineral adjuvant होता है उसके अंदर जो हमारी वैक्सीन होती है उसका वो पार्ट जो है उसके अंदर absorb होता है तो हम उसको वैक्सीन इज रेफर्ड एज दी एब्सॉर्ब वैक्सीन. सो कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन है दो होते हैं. एक एंटीजन होता है जो कि जो कि पैसिव इम्यूनिटी कॉज करवाता है बॉडी में जाकर. दूसरा होता है इसका एडजेंट जो कि उसको अपने साथ उस एंटीजन पार्ट को अपने साथ अब्जॉर्ब करके रखता है. फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं द अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ वैक्सीन. सो वैक्सीन कैन बी लाइव, वैक्सीन कैन बी attenuated, vaccine can be killed, it can be a toxoid component um, uh, of the uh, infectious agent. It can be its subunit, it can be conjugated component uh, of the antigen. So CMNC अगर हम ऐसे डेवलपमेंट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इन दी प्री क्लिनिकल सेफ्टी एफिकेसी इम्यूनो ऐसे देखते हैं हम कि उसकी जो है इम्यूनो ऐसे कैसा आ रहा है, वो कितनी जो है ना वो इम्यूनिटी कॉज करवा रहा है बॉडी में. फर्स्ट इन मैन सेफ्टी इम्यूनेसी. फिर हम देखते हैं कि क्या ह्यूमंस में अगर हम वो वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो वैक्सीन सेफ है और कोरिलेट टू द प्रोटेक्शन एंड पैसिव ट्रांसफ़र. और वो अगर ये कर लेती है तो हम उसके फेज़ 4 ट्रायल को देखते हैं और देन वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन रूटीन फॉर द ऐसे यूज़ करते हैं. यानी अगर वो ऐसे हमारा जो है वो हमारी ड्रग जो है हमारी वैक्सीन जो है वो वैलिडेट हो गई है तो फिर वो जो हमारा वैक्सीन का जो रूटीन ऐसे होगा वो वाइड स्प्रेड हो जाएगा और वो लिमिटेड हो जाएगा. तो वैक्सीन की टाइप्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं. तो सबसे पहले टाइप जो वैक्सीन की है वो है लाइव वैक्सीन. लाइव वैक्सीन जैसे नेम से ही शो हो रहा है, दिस प्रिपरेशन contain live bacteria or viruses or any other agent which is causing any disease when administered by appropriate route cause subclinical और mild infection. तो क्या होता है कि इसकी वजह से subclinically और mild infection होता है. severe infection नहीं होता बट एक तरह का mild infection होता है इसकी वजह से. So in the course of such an vaccine, the component of the microbes is like in the vaccine evoke an immune response which provide protection against the series
नेचुरल डिजीज। तो क्या होता है कि उस स्मॉल काइंड ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट जो है वो डिजीज के अगेंस्ट या माइक्रोब के अगेंस्ट पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल में आ जाती है हमारे पास वैक्सीन स्मॉल पॉक्स एंड BCG वैक्सीन जो कि टीबी में यूज होती है। जो बैसिलस कैलमिटे यूरिन वैक्सीन है, टीबी वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरीली यूज अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस इज नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर। उसके इन्वेंटर्स के नेम पर इसका नाम रखा गया था। उसमें एल्बर्ट कैलमिटी कैलमिटी में सी एंड कैमिला ग्वेरिन जी। So killed vaccines. तो नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन जिस नेम से शो हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ करके जो हमारा माइक्रोब होगा उसको किल करेंगे, देन उसकी वैक्सीन बनाएंगे। तो किल्ड वैक्सीन आर सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैथोजेनिक एजेंट दैट हैव एन किल्ड बाय हीट और डिसइंफेक्शन। यानी हमने उनको हीट से या किसी डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करके लाइक फिनोल और इथानॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से हमने उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को या उस पैथोजेनिक एजेंट को किल कर दिया है। फिर हम जब उसको अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो दैट किल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेप्लिकेट एंड कोज एन इन्फेक्शन, बट बस वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। सो दस द एवरी डोज ऑफ द किल वैक्सीन मस्ट बी हैव एन एंटीजेनिक मटेरियल टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है वो मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे जो आगे उस माइक्रोब से हमें सेव कर लेंगे। आगे आ जाती है थर्ड टाइप में ही किल वैक्सीन के सच सिंस ऑल कंपोनेंट्स as since all component of the microorganisms are present in it may be toxic बॉडी, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन माइक्रोब के तमाम बॉडीज प्रोड्यूस प्रेजेंट हैं, तो इट कैन बी टॉक्सिक। सो दस इट्स रिकमेंडेड सो divided into a vaccine into booster doses which may be given at regular interval of time। जैसे हम पोलियो की देते हैं, आपको पता होगा कि 5 साल के हर बच्चे को हर साल जो है वो वैक्सीन दी जाती है। फिर टाइफाइड की वैक्सीन, फिर प्रोट्यूराइटिस, कोलेरा, प्लेग और रेबीज, सारे के सारे किल वैक्सीन होते हैं और इनकी बूस्टर डोज भी किसी एज में भी लगाई जा सकती है। यानी जब रेबीज स्पेशली हम तब लगाते हैं एज अ बूस्टर डोज जब किसी पर्सन को किसी रोडेंट ने या फिर किसी डॉग वगैरह ने उनको बाइट किया होता है। आगे आ जाते हैं एडजुवेंट कंपोनेंट ऑफ दी वैक्सीन, जो एज अ एडजुवेंट यूज़ होते हैं, एज अ अब्जॉर्बिंग एजेंट यूज़ होते हैं। तो उसमें आ जाती हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विच इन्हांस द इम्यून रिस्पॉन्स। इनका मकसद क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं या ये ग्रैब्स कर लेते हैं हमारे वैक्सीन पार्ट को, और उसका का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो वैक्सीन होती है उसका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है उस एडजुवेंट की वजह से। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है एंड द एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है ना वाइडली यूज्ड एडजुवेंट्स है इन द ह्यूमन वैक्सीन्स। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट टाइप आ जाती है फोर्थ, टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में कोई भी टॉक्सिन जो कि सिक्रीट हुआ है बाय सर्टेन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, उसकी हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच वैक्सीन द टॉक्सिन इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड केमिकली विद फॉर्मल्डिहाइड टू एलिमिनेट इट टॉक्सिसिटी। वैक्सीन सबसे पहले हमने टॉक्सिन लिया, उसको हमने सेपरेट आउट किया केमिकली, और देन हमने उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने उसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉक्सॉइडिंग एंड द एंड प्रोडक्ट जो उसमें प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा टॉक्सॉइड और फोर मॉल टॉक्साइड। इसमें एग्जांपल आ जाती है टेटनस की, डिप्थीरिया की, बोtulism की, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन ऑफ द फार्म एनिमल्स की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल सेल which may consist of undesirable retrogenic compound, vaccine are prepared by purified प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। जो कि उसके प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसकी प्योरिफिकेशन के बाद एक वैक्सीन प्रोड्यूस कर देते हैं। These vaccine evoke the immune response, and only a component of such vaccine is used to induce the response that is more specific and effective। क्योंकि हम वही सब यूनिट ले रहे हैं इसमें जो कि डिज़ायर रेटिजोनिक कंपोनेंट है, और उसी के खिलाफ जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। सो एग्जांपल इसमें आ जाती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की, नेसेरिया मेनिंजाइटिस ACWY की, मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया ACWY and hepatitis B, etc.
आगे आ जाती है टाइप कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में क्या होता है, सम एंटीजन विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन एंड द लेस इम्यूनोजेनिक डू नॉट गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वैक्सीन का पार्ट है, जो एंटीजन है, वो इतना बेटर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, such antibiotics antigens are conjugated with certain immunogenic carrier which improve the immunogenic response। हम उसको ऐसे किसी immunogenic carrier के साथ कंबाइन कर देंगे कि वो उसकी जो immunogenic response है, जो उसकी वैक्सीनेशन पावर है, वो बढ़ा देगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ग्लाइको conjugated वैक्सीन की ऑफ नेजेरिया मेनिनजाइटिस विद कैरियर प्रोटीन CRM197। आगे आ जाती है, यहाँ पे हमने पढ़ ली सारी की सारी टाइप्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वैक्सीन्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वैक्सीन परफॉर्म करते हैं। The quality control of vaccines and during the production and during the manufacturing of the quality and during the development of the new drug, new vaccine is very important। So quality control of the vaccine जो है वो मैंने आपको जैसे पहले पिछले एक डायग्राम में बताया कि जब एक वैक्सीन डेवलप हो रही होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस पे हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट ऐसे परफॉर्म करते हैं, और जब वो हमारी जो वैक्सीन है जब वो वैलिडेट हो जाती है, तब हमारे नंबर ऑफ दी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं वो कम हो जाते हैं। उससे पहले जो है हम मल्टीपल साइट्स पे मल्टीपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। So quality control of the vaccine can be considered as extraordinary group of the biologics. They are heterogeneous with respect to composition. They can be like live attenuated polysaccharide भी हो सकते हैं, और उसके अंदर many other components भी हो सकते हैं। In many so they are not well defined। तो उसके अंदर कोई भी पार्ट हो सकता है वैक्सीन के अंदर, होल बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर लिपिड भी होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसके अंदर पोलीसेक्राइड भी होगा, और मैनी अदर कंपोनेंट्स भी होंगे। उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, अमीनो एसिड्स भी होगा, डीएनए भी होगा, कोई भी इसका एंटीजेनिक कंपोनेंट हो सकता है। So each vaccine need a tailor-made set of tests in order to establish its quality। अगर हमें वैक्सीन की क्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है तो हम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन हम जो है वो टेलर मेड सेट ऑफ टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। द करंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज वेल एज द समराइजेशन इन 3 आईसीएच गाइडलाइंस जो है वो Q7, Q8 और Q9 है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द वैक्सीन के लिए। कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द वैक्सीन अगर हम देखें, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वैक्सीन देखें, तो because of the high product quality required the identification of the critical process of the parameter। क्योंकि ये एक जो है हाई प्रोडक्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड करती है वैक्सीन, क्योंकि अगर इनमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन या फिर अनटोवर्ड इफेक्ट्स इसके कॉज कर सकते हैं। तो इसकी हमें सबसे पहले इसके क्रिटिकल प्रोसेस या क्रिटिकल स्टेप ऑफ दी इसकी प्रोडक्शन की क्रिटिकल स्टेप को देखना है ऑफ द डिजाइन स्पेस, एंड इट विल बी क्लियर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एसे। तो अगर हम इसके ड्यूरिंग द वैक्सीन डेवलपमेंट अगर हमें इसका क्रिटिकल स्टेप मिल जाता है, तो फिर हम कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वैक्सीन बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द एसे that provide the information are essential to process development and biopharmaceutical। और जो हमारा जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ द वैक्सीन का जो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। ऐसे डेवलपमेंट जो है वो पढ़ते हैं। ऐसे डेवलपमेंट क्या होता है कि हमने कोई न्यू वैक्सीन बनानी है, कि वो एक न्यू डोसेज फॉर्म है, हमने उसकी बायो एसे की प्रोफाइल खुद टेलर करनी है, खुद बनानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बायो एसे की प्रोफाइल जो है वो हम कोविड की वैक्सीन में यूज़ करें, वही हम जो है वो फ्लू की वैक्सीन में भी वही बायो एसे यूज़ करेंगे। हर वैक्सीन का अपना अपना अलग अलग बायो एसे होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन हैव डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स और डिफरेंट उनके क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं, और उनकी जो डेवलपमेंट के जो ऐसे प्रोसीजर्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। सो दी ऐसे डेवलपमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ द पैनल ऑफ हाई क्वालिटी ऐसे in the development stage of a vaccine can reduce the risk of failure during the clinical trial। अगर हम एक क्वालिटी कंट्रोल ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं तो जो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द जो वैक्सीन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी और रिस्क कम हो जाएगा। सो व्हेन द प्रोडक्ट इज लाइसेंस द नंबर ऑफ द टेस्ट इज रिड्यूस्ड because the production process is validated and the considered product to be demonstrated। so अगर जो है वो फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन अगर डेवलप हो जाती है और उसका लाइसेंस मिल जाता है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस वैलिडेट हो जाएगा आफ्टर दी ऐसे डेवलपमेंट। जब तक ऐसे नहीं हम उसका परफॉर्म करेंगे तो हमें कैसा पता लगेगा अगर वो एफिकेसी है या नहीं, वो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को किल कर भी रही है या नहीं, या वो जो वैक्सीन है वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट करेगी भी या नहीं।
आगे हम पढ़ते हैं दी फॉर लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन एंड फॉर दी रिकमेंडेड प्रोटीन वैक्सीन डिफरेंट टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल ऐसे जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिर अगर हमारे पास लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ऐसे हमने बनाना है, यानी एक ऐसी वैक्सीन जो कि लाइव है और किल्ड है, पार्शली किल्ड वायरल वैक्सीन है ऐसे। तो हमने क्या करना है, उसका नंबर ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल और लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो है ना वो उसकी काउंट करनी है, वो एक इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे रोल उसकी डेवलपमेंट में। सेकंड आ जाती है उसकी अगर वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होगी तो उसकी जो केमिकल एंड कंफर्मेशनल स्टेबिलिटी होगी और उसकी एग्रीगेशन एंड प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि अगर ड्यूरिंग रिकम्बिनेंट प्रोटीन अगर वो प्रोटीन जो है आपस में रिएक्ट कर देते हैं तो उसमें कोई भी केमिकल एंड कंफर्मेशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके अंदर एग्रीगेशन हो सकती है रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स की, और या फिर उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो सकती है। सो एट लीस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रिकम्बिनेंट प्रोटीन हमें ये वाले टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करने चाहिए। आगे आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं जो कि हम इन अंडर दी स्ट्रेस कंडीशन अपनी वैक्सीन के ऊपर परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी जो है वो हम उसकी स्टेबिलिटी सो इन एक्सेलरेटेड कंडीशंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी वैक्सीन को एक हार्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, ये प्रिज्यूम करने के लिए कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी या इसकी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशंस क्या होगी। हमने इसको इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, इसकी पैकेजिंग आइदर लाइट सेंसिटिव होगी आइदर ये हीट सेंसिटिव है, हमने इसकी पैकेजिंग किस तरह की करनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसकी जो होगी हमने इसको इन कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना है या इन हॉट इन्वायरमेंट रखना है। तो ये डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक्सेलरेटेड कंडीशंस में, ताकि हम उसकी डिफरेंट जो है ना फिजिकल नेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसका जो है ना बायो से जो है ना हमारे पास एक तरह का डिज़ाइन हो जाता है इस तरीके से। सो स्टडीड आर डिटरमाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैक्सीन प्रॉपर्टी ओवर टाइम। तो हम क्या करते हैं एक्सेलरेटेड कंडीशन में हम उनको रखते हैं और विद द टाइम हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर टू द टेम्परेचर हायर देन दोज ऑफ द रिकमेंडेड फॉर द स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल उसकी स्टोरेज में रिकमेंडेड टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया। दिस स्टडीज में प्रोवाइड यूजफुल सपोर्ट एस्टैब्लिश द शेल्फ लाइफ ऑफ द रिलीज स्पेसिफिकेशन। वो उस वैक्सीन की रिलीज स्पेसिफिकेशन बताएगा कि आइदर हम इसको आईवी दें या आईएम दें या सबक्यूटेनियस दें, और उसकी शेल्फ लाइफ भी आइडेंटिफाई कर देता है कि ये किसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, अगर हमने इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो किस कंडीशन में हम इसको स्टोर करें। बट शुड बी स्टोर टू यूज टू फोरकास्ट रियल टाइम कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। मगर ये रियल टाइम नहीं आइडेंटिफाई करता, हम बस एक तरह की प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं इसमें। असल तो तभी होता है जब हम इसको पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब हम इसको मार्केट में लेकर आते हैं, तभी हमें इसकी अक्सर शेल्फ लाइफ और असल जो है ना रिलीजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगता है जब हम उसको एक्चुअली यूज करते हैं। तो ये तो एक तरह की बस प्रिडिक्शन होती है कि मैंने इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा और ये वैक्सीन जो है वो डिरेट हो गई, इसके अंदर डिकलरेशन हो गई, तो इसको हमने जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना। सो दे कुड also provide preliminary information about the vaccine stability। ये भी बताते हैं कि वैक्सीन किन कंडीशन में स्टेबल रहेगी at early development stage and assist the assessing the stability profile of a vaccine after manufacturing changes। तो आगे जाती है स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इंडिकेट करते हैं। तो पैरामीटर दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिकेटर फॉर द वैक्सीन एफिकेसी और सेफ्टी वो होते हैं इन अ क्लिनिकल ट्रायल। जब हम क्लिनिकल ट्रायल पर करते हैं उस वैक्सीन का तब हमें पता लगता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ और कितनी एफिकेसी है। अदर ये जो है वो जो है ना पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस करवा रही है ह्यूमन में या नहीं। सो दे आर यूज्ड एज द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी as product stability throughout the shelf life. Determining of these parameters could be result in the quantitative values and identification of the qualitative parameters that cannot be considered to in the statistical analysis। quality control तो यही बताएगा कि इसके डिटेक्टेबल रेट ऑफ चेंज क्या है, जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म करेंगे कि इसने इतने परसेंटेज ह्यूमंस में इसने हमने इतनी डोज दी तो इसमें उसने इतने साल तक इतने ईरा टाइम फ्रेम तक उसने जो है उसके अंदर इम्यूनिटी इंड्यूस करवाई, और अब हम उसको बूस्टर डोज देने की ज़रूरत है या नहीं, ये सारे के सारे पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही पता लगते हैं। आगे आ जाती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग भी सेम एज एक्सेलरेटेड टेस्ट। तो टेस्ट
स्ट्रेस टेस्टिंग का मकसद भी यही होता है कि हमें जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उसकी जो नेचर है उसको हम पता करवाएं. सो स्टडीज परफॉर्म इज टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द लाइट एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. अगर हम उसको लाइट देते हैं तो आइदर वो लाइट की मौजूदगी में कहीं वो अपनी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस तो नहीं कर लेती, एक्सट्रीम टेम्परेचर में कहीं वो कोएगुलेट तो नहीं कर लेती क्योंकि वो प्रोटीन इन नेचर है. सो दीज स्टडीज are not usually performed as a part of stability program but are used to increase instead to establish the protective packaging. Stability program में नहीं but packaging में इनका important role है and contain condition and the support exclusively labeling. तो हम उनका लेबल कर देंगे स्टोर एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोर एट बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड. जो हमारी होती है इंसुलिन वो भी जो है वो कोल्ड रूम में स्टोर की जाती है बिलो द 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये इसी स्टेबिलिटी टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग से ही हमें पता लगता है. आगे आती है वैक्सीन प्रोडक्शन प्रोसेस. अब वैक्सीन कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है इसके स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है. सो वैक्सीन की जो डेवलपमेंट होती है इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप होते हैं जो कि लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, एट लार्ज स्केल परफॉर्म किए जाते हैं. अगर आप वो डेवलपमेंट स्टेजेस में है तो इन दी स्मॉल स्केल पे वो किए जाते हैं. सो वैक्सीन प्रोडक्शन टिपिकली जो है वो टेक प्लेस एज अ फॉलो स्टेप जो कि हम आगे स्टडी करेंगे. और ये अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में परफॉर्म की जाती है. वहाँ पे हमने क्लीन रूम मेंटेन करना होता है. एक जो पर्सन होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए. वहाँ पे हमने तमाम के तमाम जो रिक्वायर्ड लैब इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पे प्रोवाइड करने होने चाहिए. जो भी हमारे पास हैवी मशीनरी है फॉर द दैट विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन वो होनी चाहिए वहाँ पे. सो जो स्टेप 1 है फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट, जो फर्स्ट स्टेप है वो है बैक्टीरिया, वायरस और सेल कल्चरिंग. ठीक है, हमने बैक्टीरिया लिया और वायरस लिया उसकी जिससे हमने वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है. हमने उसकी क्या की, हमने उसकी कल्चरिंग करवाई. मकसद क्या है, हम एक्चुअली अपनी एंटीजन को कल्चर करवा रहे हैं जो कि हमारा रॉ मटेरियल होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन. यानी हमने सबसे पहले क्या की, अपनी रॉ मटेरियल की कल्चरिंग करवाई, हमारे अपने माइक्रोब या वायरस की कल्चरिंग करवाई. फिर क्या किया, हमने हार्वेस्टिंग करवाई. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बैक्टीरिया. सेल कल्चरिंग में हम मीडिया यूज़ करते हैं और हार्वेस्टिंग में हम मशीनरी यूज़ करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, तो जो एंटीजन कंपोनेंट होता है ना वो हम सेपरेट कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. यानी अगर वायरस है तो उसका जो एंटीजेनिक कंपोनेंट है वो सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे. और अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसका एंटीजेनिक कंपोनेंट हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे. इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर हो गया. अगर हमें अगर उसका एंटीजेनिक कंपोनेंट उसका डीएनए है तो उसको सेपरेशन के लिए अलग मेथड होगा. अगर कोई प्रोटीन है उसकी एंटीजेनिक कंपोनेंट तो उसका जो होगा स्टेप अलग होगा, उसका प्रोसीजर अलग होगा. ये वैक्सीन टू वैक्सीन वेरी करती है. फिर आ जाती है प्यूरिफिकेशन. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं. केमिकल प्रोसेस होता है इसमें. इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव करते हैं और जो कंसनट्रेटेड होता है थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हम उसको प्योर करते हैं, उसकी इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं. तो ये स्टेप थर्ड होता है प्योरिफिकेशन. फोर्थ स्टेप होता है वैक्सीन इनएक्टिवेशन. यानी अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया है जो कि हमने डेड या एटेन्यूएटेड फॉर्म में लेकर आना है तो हम उसको इनएक्टिव करेंगे. या फिर हम जो भी एंटीजन है उसकी पैथोजेनिसिटी इतनी कम करेंगे कि वो इन्फेक्शन नहीं कॉज करवाएगा बल्कि वो वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इम्यूनिटी कॉज करवाएगा. तो इनएक्टिवेशन में क्या होता है, द पैथोजेनिसिटी इज सप्रेस्ड व्हाइल रिटेनिंग द इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी. फिफ्थ में क्या होता है, बैलेंस असेंबली करते हैं हम. द एक्टिव एंटीजेनिक सब्सटेंसेस कंबाइंड इन अ सिंगल कंपोनेंट. अगर हमने डिफरेंट एंटीजेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करने हैं तो हम उनकी क्या करवाते हैं, बैलेंस असेंबली करवा देते हैं. तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है. आगे आ जाता है फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, ऑल द इंग्रेडिएंट आर मेल्ट टुगेदर कर देते हैं ताकि उसकी फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस की जा सके क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सो आगे आ जाती है फिलिंग. हम वैक्सीन को उसकी वायल में या फिर सिरिंज में फिल कर देंगे. एट स्टेप हो जाएगा फ्रीज ड्राइंग. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वैक्सीन जो है वो अगर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है तो वो कैसे करते हैं, हम फ्रीज ड्राइंग से उसका जो वाटर कंपोनेंट होता है वो रिमूव कर देते हैं. This step makes it possible to remove the water component in a product by transferring it into the powder, which ensure a better stability and therefore better conservation. So इससे क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग से क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हम रोक लेते हैं क्योंकि हम उसका सारा का सारा वाटर उसके अंदर से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द वाटर उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है. तो इसलिए हम फ्रीज ड्राइंग से उसको स्टोर आउट कर लेते हैं और उसका जो वाटर है वो रिमूव कर लेते हैं. इफ़ इन केस अगर इस तरह नहीं पॉसिबल तो हम अपनी जो
फॉर्मुलेशन होती है, इसको लिक्विड ही रखते हैं। आगे हो जाता है पैकेजिंग। द वैक्सीन इज लेबल्ड इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड पैक्ड एंड रेडी फॉर शिप। फिर हम उसमें 9 स्टेप में उसकी हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं। 10th स्टेप क्या होता है, द कॉल रिलीज बैच, हम बैच रिलीज करते हैं। हमने इसके ऊपर तमाम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म कर लिए। अब हम कह रहे हैं कि अब हमने अपना वैक्सीन का ये बैच मार्केट में रिलीज करना है। तो क्वालिटी assurance confirm that the product has been manufactured and tested in accordance to the correct procedure and the national regulatory authorities give final authorization कि ये प्रोडक्ट अब आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अब हमने इंडस्ट्री से अपनी वैक्सीन जो है वो डिफरेंट एरियाज में ट्रांसपोर्ट करनी है। और वैक्सीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिव द कोल्ड चेन एंड द टेम्परेचर बिटवीन द 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें वैक्सीन अगर कोल्ड टेम्परेचर पर रखनी है तो उनका टेम्परेचर जो है हमने 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके भेजना है। आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वैक्सीन स्टार्ट होता है यहाँ पे, पार्ट बी। बट मैं इसी टॉपिक में ही, इसी वीडियो के अंदर ही इसको रखूँगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग काइंडली जो डिफरेंट स्टेप ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट है वो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और इसमें मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और अगर आप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली शेयर दिस लेक्चर टू योर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिस्ट कम्युनिटी, फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट कम्युनिटी जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, डिफरेंट लैब अथॉरिटीज़ या ड्रग टेस्टिंग लैब में वो वर्क करते हैं। तो उनके लिए आई होप दिस जो प्रोसीजर होगा दैट वुड बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव। सो यहाँ पे डॉक्टर एंथोए एस फ्रोंगी जो कि डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन है, उन्होंने वैक्सीन की एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिम द वैक्सीन इज अ नेचुरल इन्फेक्शन इज द मदर ऑफ ऑल वैक्सीन। कि वैक्सीन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस करवा रहे हैं, दैट इंड्यूस टू द वैक्सीन टू द इंड्यूस द इम्यूनिटी। तो आगे आ जाती है दो टाइप्स ऑफ और आ जाती है वैक्सीन की, वो हो जाती है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन क्या होता है, इसमें हम 2 और मोर एंटीजन को कंबाइन कर देते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग स्केल पे हम 2 एंटीजेंस को कंबाइन कर लेते हैं एट द फॉर्मुलेशन स्टेज और मिक्स इम्यूनिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। सच वैक्सीन आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 1 और मोर डिजीजेस। यानी अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चों को जो हिफाजती टीके लग रहे होते हैं, हिफाजती टीकों में रेबीज, टाइफाइड और डिफरेंट अदर डिजीजेस की जो है ना वैक्सीन एंटीजेंस और वैक्सीन कंबाइन की होती हैं। तो वो हमारी कंबाइंड वैक्सीन होती हैं। तो वो क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है कि 1 और 2 मोर डिजीजेस की इम्यूनिटी एक साथ ही हम इंड्यूस करवा देते हैं और अगेंस्ट 1 डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सीरोटाइप। या हम डिफरेंट स्ट्रेन है, जैसे जो हमारे फ्लू है इन्फ्लुएंजा, उसकी हर साल डिफरेंट स्ट्रेन्स आती हैं। तो उसकी कंबाइंड स्ट्रेन्स अगर हमने एक ही वैक्सीन में रख दी हैं तो वो सारी की सारी कंबाइंड वैक्सीन होगी। सेकंड आ जाती है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होता है उससे कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है हमारा एंटीजन, और इससे क्या होता है जो हमारी इम्यूनोजेनिसिटी हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे रियल टाइम कंडीशन एंड स्टेबिलिटी स्टडीज सच एज द फिजिकल स्टडीज ऑन द फिजिकल, chemical, biological, biopharmaceutical and microbiological characteristics of vaccine during and up to the expected shelf life and storage period of sample under the expected handling of the storage condition। हमने वैक्सीन की डिफरेंट जो है ना नेचर फाइंड करने के लिए हमने उसको फिजिकल टेस्ट उसके ऊपर हमने परफॉर्म करने हैं, करेक्टरिस्टिक उसके जानने हैं, उसकी हमने केमिकल नेचर जाननी है, उसके ऊपर हमने डिफरेंट केमिकल बायो ऐसे परफॉर्म करने हैं, हमने उसके ऊपर बायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करने हैं, हमने उसकी बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, उसकी फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी उसकी डिटरमाइन करनी है और उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल करेक्टर डिटरमाइन करने हैं ताकि हम उसकी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हम उसकी एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ, उसका पीरियड और उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर लें। तो बायोसे का मकसद ही यही होता है कि हम उसकी तमाम नेचर को जान लें और उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, फार्मास्यूटिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है बॉडी पे, वो सारा डिटरमाइन कर लें before clinical trials. So the results are used to recommend storage condition and to establish shelf life and release स्पेसिफिकेशन। अगर हम उसको बायोफार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स के सारे पता होंगे, उसके पीके एंड पीके डी पैरामीटर सारे पता होंगे तो हम उसकी रिलीज स्पेसिफिकेशंस भी पता कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज होती हैं
आगे आती है सम डेफिनेशंस। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? इज यूज्ड एज अ लोड ऑफ रिलीज यूनिट्स। Usually stability of the vaccine after exposure of the temperature higher than those of the recommended for storage for a specified period of time is noted. This is expressed in the change in the potency. क्या करते हैं कि हम फॉर हाई टाइम जो है ना हाई टेम्परेचर तक एक टाइम तक ना वैक्सीन को जो है ना वो थर्मल हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी जो पोटेंसी होती है ना वो चेंज हो जाती है। नज़र तो हमें यही आ रहा होता है कि बज़ाहिर जो है ना उसकी जो है सारी की सारी नेचर सेम है, बट एट द एंड क्या हो रहा होता है उसकी जो पोटेंसी होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये सारे का सारा होता है ड्यूरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी। यूटिलाइजेशन पीरियड क्या होता है? रेफर्स टू द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द a liquid or reconstitution is prepared and the final vaccine इन आ ओपन कंटेनर टू बी यूज्ड। यानी हमने एक वैक्सीन का कंटेनर ओपन किया और फिर हमने उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करके वो जो वैक्सीन है वो यूज़ कर ली, तो वो उसका यूटिलाइजेशन पीरियड टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? यूटिलाइजेशन पीरियड टाइम रेफर्स टू एज अ टाइम ड्यूरिंग विच a liquid or reconstituted preparation of the final vaccine is an in an open container can be used या can be administered। तो वो होगा उसका यूटिलाइजेशन पीरियड। आगे जाती है सो व्हाट शुड बी टेस्टेड। वैक्सीन की अगर हम बायोलॉजिकल ऐसे या बायो से परफॉर्म कर रहे हैं या उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से टेस्ट उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे या कौन कौन से एथिकली हमें टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। सिंस वैक्सीन आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर assemblies they require extensive quality control tested। तो उनके एक एक स्टेप पर उनकी वैलिडेशन उनकी एक एक स्टेप पर जो है वो मल्टीपल बायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सो because they are अंडर एक्सटेंसिव क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बिकॉज इनका जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में दैट शुड बी प्री डिटरमाइंड। हम ऐसे ही कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करके किसी भी ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके ऊपर पहले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। इसकी एफिकेसी क्या है, इसकी टॉक्सिक प्रोफाइल क्या है, अदर ये सेफ है, एफिकेसी है या नहीं। हम ऐसे ही कोई भी फॉर्मुलेशन एडमिनिस्टर नहीं कर लेते। आपको पता है कुछ वैक्सीन जो है वो सबकटेनियस दी जाती हैं, कुछ सबलिंगुअली दी जाती हैं, कुछ जो है वो वैक्सीन आईवीएम में लगाई जाती हैं। तो ये वैक्सीन के डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो हमें इनके ऊपर एक्सटेंसिव क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं कि किस रूट में ज़्यादा सेफ होंगे, किस रूट में ज़्यादा इफेक्ट देंगे, किस रूट में ये ज़्यादा बेहतर मेमोरी सेल क्रिएट कर पाएंगे। द इनहेरिट सेंसिटिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस टू चेंज इन environmental condition and the importance to test of reflecting potency and the degree of uncertainty, and the fact that in general a single parameter is sufficient to document the stability and the stability profile to establish। सो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द वैक्सीन आ जाती है आगे। क्वालिटी हमने देखा था कि क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में हमने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम कौन कौन से वैक्सीन के अंदर ड्यूरिंग द वैक्सीन डेवलपमेंट हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन कौन से क्यूए टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो जो क्यूए टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो होंगे ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्शन। जो हमारी बैच 1 की कंसिस्टेंसी है वो हमारी बैच 2 और फर्दर फ्यूचर बैच से मैच करनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि हम एक एसओपी डिज़ाइन कर लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन। तो हमारे जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्शन है वो सेम रहती है, चाहे वो 4-5 साल बाद हो, हमारी एक ही क्वालिटी की वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे स्टेप्स जो होंगे ऑलरेडी जो होंगे वो डिज़ाइंड होंगे इन एसओपी फॉर्म। सो सेवरल इन प्रोसेस कंट्रोल हम इसके अंदर करेंगे। हम ये भी डिज़ाइन करेंगे कि हमने किस स्टेप पर कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करना है। तो हमारे जो वैक्सीन की होगी वो एक मेंटेन क्वालिटी की होगी। क्वालिटी कंट्रोल का ही ये अंडर आती है टॉपिक। तो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट का मकसद ही यही होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट जो है वो अभी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी रहे, जो उसकी क्वांटिटी कंसनट्रेशन रहे, डिफरेंट एक्सिपिएंट कंसनट्रेशन रहे, उसके तमाम के तमाम बैचेस में सेम रहे। और आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाहौर में हो रही है किसी यूनिट पर, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाहौर में एक वैक्सीन की प्रोडक्शन हो रही है, तो अगर मुंबई में या फिर इंडिया में कहीं उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो सेम हो दोनों जगह पे। मुंबई में हो उसका प्लांट, चाहे उसका कोलकाता में उसका प्लांट है या चाहे उसका कराची में प्लांट है, तो उसकी जो एसओपीज डिज़ाइन की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, वही उसका क्वालिटी कंट्रोल उसकी एश्योर करेगी। एडहेरेंस टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तमाम जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हैं उनको आपने गुड रखना है, स्टेराइल एनवायरनमेंट रखना है, और बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के जीएमपी में दिए गए थे उनको हमने फॉलो करना है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग शुड बी सीन इन कंटिन्यूस फेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन लाइसेंस
लाइसेंसिंग टू पोस्ट लाइसेंसिंग मॉनिटरिंग। तो हमने क्या करना है, उस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफाइल की हमने लाइसेंसिंग बना लेनी है। एंड ऑल्दो द स्टडी at different stages and different term can be designed parameter and testing environmental conditions to which the vaccines are exposed. This is an ongoing process for the monitoring vaccine stability throughout the vaccine's life. आगे आ जाती है how to choose stability indicators parameters of them। हमारे जो ये डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी इंडिकेटेड पैरामीटर डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ एंटीजन क्या है। हमारा एंटीजन प्रोटीन इन नेचर है या डीएनए इन नेचर है या पॉलीसेकेराइड है। अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे हमारे कोई एडिटिव या फिर कोई कैरियर प्रोटीन है जिसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर मोस्ट वैक्सीन पोटेंसी इज कंसिडर्ड और स्टेबिलिटी इंडिसिंग पैरामीटर दैट रिफ्लेक्ट्स potential impact of environmental conditions on the immunogenicity and thus subsequent protective efficacy of the vaccine. आगे आ जाती है हाउ टू चूज स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर ऑफ द वैक्सीन। कैसे हमने वो पैरामीटर चूज करने हैं जो कि हमारी वैक्सीन को की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करे। पैरामीटर दैट माइट चेंज दी ओवर टाइम बट have no correlation with efficacy safety in clinical term may be in some cases used with demonstrated the consistency of the production। अगर हमारी लाइफ एटेन्यूएट वैक्सीन है तो उसके लिए हम टाइट्रेशन टेस्ट एंटीबॉडी लेवल हम चेक करने के लिए टाइट्रेशन करेंगे कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ दी एंटीबॉडीज हैं, कितनी नंबर ऑफ दी पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। इन एन ऑब्वियस स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग द पैरामीटर दैट कैन बी डायरेक्टली स्टडीड इन द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल लोड। तो ये हम ड्यूरिंग जो टाइट्रेशन लेवल है ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द फाइनल लॉट में भी कर सकते हैं और इंटरमीडिएट प्रोसेसेस में भी कर सकते हैं। फॉर नॉन लाइफ वैक्सीन इट में बी पॉसिबल कि हम उसकी पोटेंसी directly on the intermediate components पे उसकी कर लें स्टडी। so that will be studied on formulation absorbed vaccines के ऊपर। आगे आ जाती है क्यूमुलेटिव एज ऑफ द एज ऑफ द एंटीजन। जो हमारा एंटीजन है उसकी क्या एज होगी, उसकी क्या शेल्फ लाइफ होगी, व्हाट इज इट एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी का तो उसकी एज क्या होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि टोटल एज क्या है। टोटल एज ऑफ द ऑल कंपोनेंट एट द एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ इज कंसिडर्ड एज द कम्युलेटिव एज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी लेबलिंग के बाद से लेकर जो एंड ऑफ द उसकी शेल्फ लाइफ होगा वो उसकी सारी क्यूमुलेटिव जो एज होगी वो उसकी टोटल एज होगी। यानी हम अगर देखते हैं हम वैक्सीन हमने बैक्टीरिया हमने कल्चरिंग की 2018 में और हमारी वैक्सीन जाकर प्रोड्यूस हुई 2019 में और उसकी लेबलिंग वगैरह हो गई सारी की सारी और जाकर वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो तकरीबन 2 साल की है। तो 2019 से 2022 तक वो सेफ रहती है, तो वो उसकी शेल्फ लाइफ है। तो वहाँ से लेकर और क्यूमुलेटिव एज जो उसकी प्रोडक्ट की होगी वो उसकी 4 से 5 साल होगी, तो वो उसकी टोटल एज होगी। तो वो होगी हमारी क्यूमुलेटिव एज ऑफ द एंटीजन। यानी तब तक हमारा एंटीजन जो है वो 4 से मैन्युफैक्चरिंग के बाद, सेपरेशन के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद तकरीबन 4 साल तक हमारा जो एंटीजन है उसकी एज है और वहाँ तक वो स्टेबल रह सकता है। अपना जो विरुलेंस इफेक्ट है, अपनी जो इम्यूनिटी इंड्यूसिंग इफेक्ट है वो शो करेगा। द स्टोरेज कंडीशन एंड द पीरियड ऑफ द इंटरमीडिएट शुड बी स्पेसिफाइड until the specified evidence has become available demonstrating the age of intermediate has no impact on the quality, safety, efficacy of the final product. The age of the intermediate has no impact on the quality, safety and efficacy of the product. Intermediate से जाकर आगे final product बना लेना, तो storage condition में उन intermediates का कोई भी role नहीं है। The stability of the characteristic of a final product should be guaranteed during the whole shelf life, irrespective of the age intermediate at any time. They can be used at any time of the production scale. आगे आ जाती है उसकी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में भी परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट कि उसकी एज होगी कि क्या फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा इंटरमीडिएट की एज उसको अफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि और ये हमने श्योर करना है कि जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो भी हो हमारे फाइनल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ द एक्चुअल और नेचर ऑफ द एक्चुअल एज इज ऑफ एन एंटीजन एट द एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ। तो क्यूमुलेटिव एज नेचर क्या होती है, द एक्चुअल एज ऑफ एन एंटीजन एट द एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट should be taken as the considered। सो आगे आ जाती है इंटरमीडिएट्स इन द वैक्सीन प्रोडक्शन। कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जो कि वैक्सीन के दौरान प्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। सो वैक्सीन प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट सच एज हार्वेस्ट,
बल्क प्यूरिफाइड एंटीजन, जो एंटीजेंस है वो बल्क बना लें या हार्वेस्ट बना लें या बल्क अब्सॉर्ब्ड बना लें, या एडजुवेंट एंटीजन एंड द बल्क फॉर्म, यानी एडजुवेंट के साथ वो बल्क कंपोनेंट्स बना लें, बल्कली अब्सॉर्ब हो जाए और फाइनल बल्क बना लें। बट वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। जब हमारी वैक्सीन फाइनली इन शेल्फ लाइफ होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके फाइनली जो होगा प्रोडक्ट वो अपने इंटरमीडिएट्स को ख़त्म कर देगा। अनलेस अनस्टेबल और इमीडिएटली unless unstable or immediately needed for logistic reasons, such intermediates are usually not processed immediately and storage periods up to for several years। तो जो इंटरमीडिएट होते हैं वो हमारी जो स्टोरेज, हमारी जो शेल्फ लाइफ है उसको सेवरल ईयर्स तक एक्सटेंड कर देते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, नेमली सिंगल हार्वेस्ट, मोनोवेलेंट बल्क एंड मल्टीवेलेंट बल्क एंड द फाइनल बल्क। तो ये सारे के सारे हमने डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए stability should be adequately tested and documented, provided for each stage mentioned as appropriate for the production under consideration। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, कौन कौन से फिजिकल केमिकल करेक्टराइजेशन हमने वैक्सीन की करनी है, कौन कौन से फिजिकल केमिकल बायोअसे हमने परफॉर्म करना है हमारे वैक्सीन और जो कि प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी हमने स्टेबिलिटी, उसकी हमने नेचर जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। इन जनरली जो है वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 11 से 12 टेस्ट जो हैं वो दिए गए हैं जो कि हम फिजिकली या केमिकली परफॉर्म करते हैं अपनी वैक्सीन के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाती है यूवी विजिबल और मैस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या मैस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एज द नेम इंडिकेट करता है, ये डिटेक्ट करता है कि हम a detection technique with the ability to discriminate molecular masses of the different components of the mixture of a vaccine for with its sensitivity and accuracy। मकसद क्या था यूवी और मैस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, कि जो हमारा जो एंटीजन कंपोनेंट है, जो हमारे वैक्सीन के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी हम मोलिकुलर मैस या उसका हम डिस्क्रिमिनेट मोलिकुलर मैस देख लें कि किस किस मोलिकुलर मैस कितनी टाइप्स ऑफ द मोलिकुलर मैसेज जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन हमारी वैक्सीन में। आगे आ जाती है अमीनो एसिड एनालिसिस। हमने देखनी है कि अगर हमारा एंटीजन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है तो उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है। So amino acid analysis is used to determine the amino acid content of the amino acid peptides and the protein containing vaccines। आगे जाती है nucleic acid sequencing, a succession based signified by a series of set of 5 different lectures that indicate the order of nucleotide forming alleles within the DNA using guanine, adenosine, cytosine and T um, टायरोसिन, आई डोंट नो, स्किप हो गया मेरे माइंड से। तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये GACT जो हमारी हमारी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, गवानीन, एडिनोसिन, साइटोसिन, टी क्या होती है, और ये जो GUC ये जो यूरेसिल होती है ये RNA में होती है। ये यूरेसिल जो है वो RNA में होती है, ये DNA में होती है, कि या फिर ये बताया हुआ है इसमें कि यूरेसिल जो होती है वो RNA में होती है, जो टी होती है वो होती है DNA में। बस यही फ़र्क होता है न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दी। सो इस सीक्वेंस से भी हम देख सकते हैं कि हमारी कितने टाइप ऑफ द न्यूक्लियो डिफरेंट ऑर्डर है हमारे एंटीबॉडी, कितने टाइप ऑफ दी एंटीजन जो है उनकी सीक्वेंसेस क्या है, अदर वो DNA इन नेचर है या वो RNA इन नेचर है या उनका अमीनो एसिड इन नेचर है, उसकी क्या अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज क्या है, उसकी प्रोटीन कंटेनिंग वैक्सीन कौन कौन से उसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, उसका मैस क्या है। तो ये तो हमने अभी 3 टेस्ट देख लिया। देन है कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस। अक्सर जो होती है हमारी वैक्सीन जो होती है वो पॉलीसैकेराइड इन नेचर होती हैं। सो इफ अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस वैक्सीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द टेक्सचुरल प्रोपोर्शन अदर कार्बोहाइड्रेट और नॉट। फिर हमने ये डिटरमाइन करना है कि अदर हमारी वैक्सीन एंटीजन में पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट नेचर प्रेजेंट है या नहीं। पेप्टाइड मैपिंग एंजाइमेटिक डिसेशन ऑफ द प्रोटीन करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी अमीनो एसिड हैं और उनकी क्या सीक्वेंसेस हैं। पेप्टाइड मैपिंग से हम क्या करते हैं, हम अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस फाइंड कर लेते हैं। ये हमारी जो डिफरेंट जो होंगी हमारी चेन्स होंगी अमीनो एसिड्स की, उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। resulting peptide via liquid chromatography prior to the mass spectrometry assessment। हम पहले ही पेप्टाइड मैपिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से पेप्टाइड इसके अंदर प्रेजेंट है और उसकी कितनी चेन्स हैं। द प्रोसेस जनरेट्स अ फिंगरप्रिंट और द सेट ऑफ यूनिक पेप्टाइड्स इन द वैक्सीन। आगे आ जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बाउंड।
डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके 3D स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्सीन को बता देती है और उसको प्रिडिक्ट कर देती है कि हमारी वैक्सीन जो है वो उसकी 3 डायमेंशनली उसकी क्या नेचर है. द प्रोटीन विल बी प्रोवाइड insight into the three-dimensional structure and contributing in studying the structure and functional relationship of the vaccine. फिर आ जाती है सोडियम डोकाइल सल्फेट पोलिया क्लोराइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये बताती है कि हमारी जो एंटीजन कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या क्या मैस है. वो मैस ए है, बी है या फिर तमाम का मैस यूनिफॉर्म है. द यूज ऑफ द सोडियम डोसाइल सल्फेट एसडीएस आल्सो नोन एज सोडियम लोराइल सल्फेट एंड पोली एक्राइलामाइड जेल लार्जली एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड चार्ज. तो हमें पता है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड चार्ज होती है. और प्रोटीन दैट सेपरेटेड सोली ऑन द बेस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथ. क्या क्या लेंथ है हमारे एंटीजन की पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथ, उसके बेसिस पे वो सेपरेट होंगे. और ये भी डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है और उसका चार्ज क्या है. हमें पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है. उस चार्ज के बेस पर भी जो हमारे पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं. आगे आ जाती है एसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग आईडी और 2D 1D और 2D. तो ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप है. इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस first dimension molecule are separated linearly according to the isoelectric point. In the second dimension, the molecule are then separated at 90 degrees for the first electroprogram according to the molecular mass. In various chromatography methods such as HPLC, gas chromatography, liquid chromatography और thin liquid chromatography, ये separate करते हैं हम different mixture of the component. कौन कौन से हमारे अंदर adjuvant है, कौन कौन से anti जिन प्रोड्यूस हैं, कौन कौन सी वायरस जो है लाइफ या फिर डेड वैक्स हैं, कौन कौन से टॉक्सॉइड हैं, उनकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वैक्सीन के, वो सारे सेपरेट आउट कर लेगा. अगले है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ये हमारे फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मैटर करती है और ये डिपेंड करती है कि हमारी मोलिकुलर आइडेंटिटी क्या है और उसके स्ट्रक्चर क्या है. NMR. फिर आ जाती है assay to detect the related protein including deaminated, oxidized, processed and aggregated form of other variants such as amino acids, substituted adduct derivative कौन कौन से हैं, another contaminants कौन से हैं, sulfhydryl reagents, urea residual, host protein and the residual DNA and endotoxin. हमारे assay का मकसद यही है कि कौन कौन से केमिकल और केमिकल कंपोनेंट्स और डिफरेंट कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है हमारे वैक्सीन में, हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस हैं. वैक्सीन्स आर ऑफ्टन सेल mediated assay to ensure infectivity whereas the recombinant vaccine potency can be reliably monitored with immunoassay. अमीनो ऐसे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी पोटेंट है. लीड जनरेशन, ठीक है, बायो से ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ दैट वैक्सीन भी करेंगे, बायो से ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट भी करेंगे, चाहे वो लेट जनरेशन है, चाहे वो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट है या वो क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज 1-2 में है या 3 में है, या फिर वो ड्यूरिंग द क्वालिटी या ड्यूरिंग वो कमर्शलाइजेशन है. हमारी वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, अब वो कमर्शलाइज्ड है. मैन्युफैक्चरिंग द QC एंड द रिलेटेड कंट्रोल में भी हमें उसका बायो से परफॉर्म करना है. तो बायो से परफॉर्म चाहे ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ द वैक्सीन है या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन है या ड्यूरिंग द कमर्शलाइजेशन, बायो से हर जगह पे की जाती है. बस ये होता है कि ड्यूरिंग द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट जो है वो बायो से ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है. बाद में जब हम एक SOP डिज़ाइन कर लेते हैं, बाद में ड्यूरिंग आफ्टर द कमर्शलाइजेशन जो बायो से के जो स्टेप्स होते हैं या फिर होते हैं लिमिटेड हो जाते हैं. बट न्यू ड्रग डेवलपमेंट और आफ्टर द न्यू ड्रग डेवलपमेंट बायो से परफॉर्म होता ही होता है. आगे आ जाती है एक्टिविटी डिटरमाइनिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिटर्मिनेशन. इसमें क्या होता है कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी एफिकेसियस है. Specific identity testing such as Western blot and ELISA can be used to detect the homologous antibodies, and these techniques are based on the target antigen secreted purified native whole parasite extracted or recombinant protein being immobilized on the solid support
फॉलोड बाय इंक्यूबेशन एंड द सीरम कंटेनिंग एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। यानी हमने वो देखना है कि उसकी सीरम में उसकी कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जो एलाइजर में हम देखते हैं। साइटोमेट्रिक एनालिसिस में हमने ये देखनी है एलाइजर बेस्ड टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एनालाइज द केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड पार्टिकल्स। उसकी क्या क्या साइटोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, उसकी सेल क्या है, उसके अंदर कौन से प्रेजेंट है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंबाइंड फॉर्म में है, वो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, वो क्या फॉर्म है, उनकी साइटोमेट्रिक एनालिसिस से हमें पता लगेगा। आगे आ जाती है न्यूरो virulence testing, neurovirulence test of the vaccine on the human use and the drug dependency on the neurologically activity pharmaceutical compound that are only fit to choice of the parameters of the regulatory neurovirulence से ये देखते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी virulent है, उसकी नेचर ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी या फिर नेचर ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन कितनी virulent है वो, और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। सीरोटाइप में क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन द जेनेटिक टारगेट of the O and H antigen compared to the phenotypic genetic subtypes on the base of the DNA genetically better। सीरोटाइपिक में हम देखते हैं कि आइदर उसकी सीरोटाइप नेचर क्या है, वो डीएनए है, वो बैक्टीरियल कोई एंटीजन है, वो कोई प्रोटीन है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो सीरोटाइपिंग में वो किस किस के साथ बाइंड कर सकती है, उसका कौन सा बॉन्ड फ्री है। इलेक्ट्रोफोरेटिक टाइपिंग a lab technique used to separate DNA and RNA or protein molecule based on the molecular size and the electrical charge। साइज और नेचर और आरएनए के बेसिस पे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड टू मूव द मॉलिक्यूल in a gel। Inactive studies क्या होती हैं, inactivation studies in which the non-primary area were inactivated are labeled with specific regions of the AC targeted region। Neutralizing study में हम ये देखते हैं the acid detect the antibody, फिर हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं वायरस एप्लीकेशन के थ्रू और द अदर एंटीबॉडी उसको कोई लगाकर, फिर हम देखते हैं कि उसको कौन सी एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज कर रही है। टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। टाइट्रेशन आपको पता है क्यों परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन, ये देखने के लिए कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ दी लिविंग या फिर डेड वायरसेस हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये सारी, और उसकी क्या क्वांटिटी है, इसकी क्या नेचर है, ये सारी हम टाइट्रेशन से देखेंगे। बट आर नीड टू अकम्पाई प्रोसीजर कंपनी प्रोसीजर्स वैक्सीन बिफोर एंटरिंग द मार्केट। अब हमने वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले पहले कौन कौन से उसके ऊपर क्या क्या उसके ऊपर बायो से परफॉर्म करना, वो क्या होगा। डिस्क्रिप्शन एंड रिजल्ट ऑफ ऑल रेलिवेंट इन विवो एंड इन विट्रो बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ द बायो से हम उसको परफॉर्म करेंगे ऑन द मैन्युफैक्चरिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड load or another relevant loads to demonstrate the potency and activities of the active substance। हम उसके ऊपर डिफरेंट इन विवो एंड इन विट्रो बायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये देखने के लिए कि वो कितनी पोटेंसी, उसकी क्या क्या एक्टिविटी है हो जाएगी। यानी एक तरह का फॉर एग्जांपल हम वो वैक्सीन जो है वो फेस क्लिनिकल ट्रायल 1 में है या क्लिनिकल ट्रायल 2 में है, जिसमें हम उसकी इन विट्रो एंड इन विवो स्टडीज परफॉर्म करते हैं। कंप्लीट एक्सक्यूटेड represented batch record is of the process of the production of the active substances should be provided। हमने एक पूरा बैच रिकॉर्ड रखना है, ईच एंड एवरी स्टेप का हमने रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी है। आगे आ जाती है स्पेसिफिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ईच मॉडिफाइड एक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट एंड उसकी मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी क्या है। फिर हमने उसका वैलिडेशन पॉइंट और स्पेसिफिकेशन भी करनी है। द टेस्ट रिजल्ट फॉर द ड्राइव्ड सब्सटेंसेस विल बी रिपोर्टेड ऑन द final released of the drug product validation report to the include estimation of the variability and the upper and lower limits क्या क्या होंगी उसकी स्पेसिफिकेशन की, कि इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, किस लेवल तक ये विरुलेंट है, किस लेवल तक ये विरुलेंट नहीं है, तो उसकी वैलिडेशन लिमिट हो जाएगी या वैलिडेशन रिपोर्ट हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन should be include the amount of the unreacted starting materials processed reagent unless their removal has been validated। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पास ये वैक्सीन है, ये इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करेगा, हमारे मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, हमारे मेमोरी सेल को एक्टिवेट करेगा, और इसके अगेंस्ट जो होगा एक मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेगा और एक इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप हो जाएगी एंटीबॉडीज के थ्रू। तो वो पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, आधा लिपिड होगा, पेप्टाइड नेचर होगा, तो वैक्सीन की कुछ कोई भी नेचर हो सकती है, इसकी कुछ भी स्पेसिफिकेशन हो सकती है। आगे हो जाता है ऐसे मस्ट बी वैलिडेटेड। अगर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट या क्लिनिकल ट्रायल 1 या क्लिनिकल ट्रायल 2 में या पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग या पोस्ट वैलिडेशन अगर हम कर रहे हैं परफॉर्म बायो से, तो वो बायो से वैलिडेट होना चाहिए, वो बायो से रिलायबल होना चाहिए। हमने उसकी कोई एसओपी डिज़ाइन की हो या आपने उसकी टेलरिंग
बायो से डिज़ाइन किया हो या फिर जो भी वाइडली बायो से यूज़ होते हैं फॉर द वैक्सीन वो हम यूज़ करें उसमें। द reliability of the assay or the test used for evaluate the cell substrate in the context of the intended should be demonstrated. Test method should be validated on the principle of the ICH Q2A Q2B document and the USP pharmacopoeia। इसके अलावा जो ICH गाइडलाइंस में Q2 3 और 4 थे। आगे certain compendial method might not be required for the full verification as well as the stability under the actual condition of the verified। ज़रूरी नहीं है कि वही फुल वैलिडेट प्रोसेस हम जो कि कंपेनिया में देखे हैं वही यूज़ करेंगे। हर वैक्सीन में डिफरेंट टाइप ऑफ दी बायोएसिक बायोलॉजिकल ऐसे उसका प्रोफाइल डिफरेंट होती है। तो वैक्सीन रिलीज टेस्टिंग हमने करनी है कि वैक्सीन अगर हमने एडमिनिस्ट्रेट की तो वो कैसे रिलीज होगी। द एम ऑफ द रिलीज टेस्टिंग इज टू गिविंग बैच of a given badge is to show that this badge consistence with एंड इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव बैजेस, यानी बाकी जितने भी बैच हैं उसके वो इक्विवेलेंट है, उससे कंसिस्टेंट है, उसकी क्वालिटी मैनेज्ड है, प्रोड्यूस बाय द गिवन मैन्युफैक्चरर एंड द बैजेस हैज़ बीन शोन सेफ एंड एफिकेसिस इन द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द मैन। अगर वो ह्यूमन में यूज़ होंगे तो वो सेफ और एफिकेसिस होंगे और इक्विवेलेंट एंड कंसिस्टेंट बैजेस होंगे। Among all tests include the specification for the badge released most have to be carried out on product and its final container। उसमें हमने उसका वॉल्यूम, उसमें हमने उसकी पीएच, उसकी हमने स्टेबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर एनोटॉक्सिगन कंसंट्रेशन और नेचर, प्रिजर्वेटिव कौन से यूज़ किए हैं, एडजुवेंट कौन से यूज़ किए हैं, एक्सिपेंट कंटेनेंट कौन से हैं और उसकी क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आज हमारा जो है वैक्सीन्स की क्वालिटी कंट्रोल और वैक्सीन की जो प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट में जो वैक्सीन्स थी वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इजीली आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश की है और काइंडली आप मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन गिवन बिलो एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल ऑन एंड स्विच ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह की फार्मेसी और केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं जो और आगे वीडियो अपलोड करती रहूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट करने वाले को रिएक्ट करती हूँ, उसको रिस्पॉन्स देती हूँ। और काइंडली इस वीडियो को आपने फार्मेसी कम्युनिटी या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी कम्युनिटी या फिर केमिस्ट कम्युनिटी में ये शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उनको पता लगे कि वैक्सीन प्रोडक्शन के जो है वो स्टेप्स वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट में छोटी सी एक चीज़ बताती जाऊँ कि जो कोविड की वैक्सीन रिसेंटली डिज़ाइन हुई है, उसकी डिस्कवरी जो हुई है उसमें वो होती है ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग इन क्लिनिकल जो डेवलपमेंट हो रही है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट IND, लीड जनरेशन एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन डिस्कवरी हुई उसकी। फिर हमने उसकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 डेवलपमेंट की। उधर भी हमने उसका बायोअसे डिज़ाइन किया। फिर जब हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तो वहाँ पे भी हमने उसकी प्रॉपर जो है वो आफ्टर कमर्शलाइजेशन एंड लॉन्चिंग में भी हमने उसका बायोअसे परफॉर्म किया और हम उसकी बायो से अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं कि वो कितनी एफिकेसी सेफ्टी प्रोफाइल्स क्या है। ये आफ्टर दी क्लिनिकल कमर्शलाइजेशन भी ये जो ऐसे परफॉर्मेंस है ये जारी रहती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो यहाँ पे आज हमारा वैक्सीन का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।